Hello my dear friends, welcome to our channel Banking Life Pile. Guys, today I am starting the reasoning classes series and I have created a playlist for you for the pre-examination, and this is the first class and the topic is blood relations. Okay, so let's start the video. First of all, let's learn some basic symbols which you need to remember. You can also use other symbols apart from these that I have used. I generally use plus symbol for male and minus symbol for female. Okay, so now let's take an example to know how the blood relation works. Okay, so as you can see here, A is a male, plus sign, B is a female, C is a female. So A and B are married. So to show that both of them are married, we use the arrows on both the sides. Okay, and now as you can see here, C is the daughter of A. So we will use a symbol like this, and C is married to D, as you can see arrows both side, and E is the sister of D. When you make arrow on one side pointing to one side, that means that person is a brother or a sister of the another. Okay, so now one more thing, generally 3 generations questions are asked maximum. So the A and B are in the first generation, F, C, D, E are in second generation, and X, Y, Z are in third generation. A and B are the grandfather and grandmother of X, Y, and the father and mother of C and F. Okay, so now let's take a question related to it, a blood relation. You can also pause the video and take a screenshot of the question and try to solve the question yourself, and then you can watch the video and see if your answer is, if your solution was correct or not. Okay, so let's start doing this. So now read the question. There are 8 people in a family. These are M, K, A, C, D, E, G and H. These are the name of the person. Okay, and these consist of 3 generations. I have already told you about 3 generations. 4 of them are female. So and so it's common sense that if four persons are female, then the remaining 4 will be male. All right, so next is D and A are the daughter and son of K respectively, and both are married. So we came to know about the gender of D and A, so we will put D in the female and A in the male. E is the sister of H, whose father is C, and G are of third generation, that means they are included in third generation, and M is the son-in-law of E, and K is the brother-in-law of H. Guys, when you read the question, you should simultaneously start solving it. Okay, the points which are you getting. So as you can see here, E is the sister of H, so we will put E in the females. Okay, we came to know about the gender of E, so we will put E in the females along with D. And it is said here that M is the son-in-law, that means M is a male. Okay, and he is the son-in-law. Son-in-law means he is the husband of the daughter of E. Okay, so C is shown here as the father. Okay, so we will put C also in male categories, and K is the brother-in-law, so we will put K in male, so remaining will be females. Okay, it is said, as you know, if M is the son-in-law, that means M is married. Okay, so M is married to the daughter of E. We will put E here, and E is the sister of H, so we will use the arrow on one side and we will show H here. H is female. Okay, then as you can see here, H whose father is C, that means C, we will put C in the first generation. If C is the father of H, automatically he becomes the father of E also, because E is the sister of H. So as we can see here, the mother of E is not shown here, so only the father is shown, so we will not put anything else in the first generation other than C. Okay, so we will put C only in first generation. The mother name is not told. Now what will we do? It is said that K is the brother-in-law of H, so we will put K here, that means K is married to E, and K is a male, so remaining will be female. And who are those persons? Those are remaining as female, H and
H and we have E here, and G. Yeah, G is here. Okay, so these are the female. So we came to know about the gender of all the 8 persons, the male and female. Okay, now let's go to the diagram and complete the diagram. So as you can see here that D and A are the daughter and son of K. Okay, so K is married to E. That means A is the son of K and D is the daughter, and both are married. That doesn't mean that A is married to D, because they are brother and sister. Okay, so we will put the arrows here, both sided arrows, to show the married relations. So we can say that M is married to D because D is the daughter, and the one person is remaining, G is left, so we will put G here. That means G is married to A. Okay, and the mother is not shown of E here, so we will put nothing here. So now our blood relation diagrams gets completed. We have 8 person, as you can see here, C, K, E, H, M, D, A and G. Okay, these are the 8 persons. Now after solving this question, try to solve this question in approximately 2 minutes, and you can also solve it in 1 minute also, if your speed is good and if you can practice on regular basis, because this is a easy level of question. Okay, we will come to the we will move to the tough questions also. So after solving this puzzle, now let's move to some questions regarding these puzzles and solve them. There are 3 questions related to this puzzle. We will solve these. Just a second. Yeah, here are these questions, A, B and C. So first question is, if Q is the child of D, then how is A related to that child? How is H related to D, and who is the sister-in-law of D? So guys, before solving the question, these questions, let's make the diagram again so that it will be convenient to you to solve the questions easily. Yeah, so E was the sister of H, and she was married to K. C was the father. Okay, so K is the male, C is the male, E female and H also female. And what we have left, M is the son-in-law of D. E. M is the son-in-law of E, and he was married to D. So M is the male and D is the female, and then D is the sister of A. A and D were brother and sister, so A is male and A is married to G. G was left. Okay, so G is also female. So that was the diagram. Sorry, there is one mistake. I showed M as the son here, and so just erase this line from here, E to M, because this is showing the diagram incorrectly. Let's erase it first. Yeah, so who was the daughter of E? D. Okay, because M was the son-in-law, not the son. So we will put the arrow like this. Okay, so this is a 3 generation diagram. Now let's start solving the questions. Okay, so first question is, if Q is the child of D, then how is A related to that child? So guys, there is not much space left here, and to show Q as a child of D, we will put Q here. Hope you can see and understand what I am doing here. Yeah, Q is the child of D. We don't know the gender of Q. It can be a son or a daughter. Okay, we just know that Q is the child of D, so we will put the arrow like this. And now what we have to answer, how is A related to the child? So as you can see here, A is the brother of D, so he will be the uncle of Q. And one more thing guys, A is the brother of D and D is a female. Okay, A is not the brother of M. So you can say here, you need to answer the question specifically and complete. This answer is incomplete. Uncle, if only the uncle is shown in the option, that you can select it. But if in the question maternal uncle or paternal uncle options are given, then you should select maternal uncle, because A is the brother of D and D is a female. Alright, so he will be the maternal uncle of D. Now let's move to the next question. How is H related to D? Guys, try to solve these questions yourself also, and then see if your answer is correct or not. Okay,
You can pause the video and solve these questions. How is A related to D? As you can see here, how is H related to D? As you can see here, H is the sister of E, so we can say H is the aunt of D. Who is the sister-in-law of D? Sister-in-law will be G only, because G is married to A, who is the brother of D. So we will put G here. So that was all for today guys, and we will meet in the next video with some more topics. अब यही बातें मैं हिंदी में करूँगी, ठीक है दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में बैंकिंग लाइफ पायल में। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है ब्लड रिलेशन, और ये हमारा पहला टॉपिक होगा रीजनिंग क्लासेस का, जो कि प्री के लिए स्टार्ट की गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ब्लड रिलेशन में एक बेसिक चीज़ होती है सिंबल्स। हम हर पर्सन को उसके नाम से नहीं लिखते, बिकॉज काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। मैं जनरली मेल के लिए प्लस सिंबल यूज़ करती हूँ और फीमेल के लिए माइनस। आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ड्रॉ करने में टाइम कम लगता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाया जाता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है इन पर्सनस के बारे में, ठीक है। तो ए जो है मेल है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिंबल प्लस का है, और बी फीमेल है। तो इस तरह हम सिंबल से इनकी पहचान कर सकते हैं कि जेंडर की कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। और ए बी के साथ मैरिड है। अब ए और बी का जो एज अ कपल रिलेशन है वो हम कैसे शो करेंगे, एरोज़ के ज़रिए। अगर मैरिड शो करना है तो बोथ साइड आप एरो लगाएंगे, और अगर सिस्टर या ब्रदर शो करना है तो सिर्फ एक साइड। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि डी क्या है, ब्रदर है ई का, ठीक है, तो एक साइड एरो लगाया। एफ सिस्टर है सी की, एक साइड एरो लगाया। एफ सिस्टर है सी की, और एक्स सिस्टर है वाई की। अब वाई और जेड को मैरिड दिखाना है तो बोथ साइड एरोज लगाएं, ठीक है। तो जनरली 3 जनरेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ए और बी फर्स्ट जनरेशन में है, एफ सी डी ई सेकंड जनरेशन में, और एक्स वाई जेड थर्ड जनरेशन में, ठीक है। ए और बी ग्रैंड पेरेंट्स हुए एक्स वाई के और सी और डी के पेरेंट्स, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, और आप वीडियो को पहले पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कितने टाइम में आपका ये क्वेश्चन बनता है। जनरली 1 मिनट लगना चाहिए मैक्सिमम, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 पीपल इन फैमिली। गाइस मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में रीड करूंगी ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर लिखा है कि एक फैमिली में 8 लोग हैं, एम के ए सी डी ई जी और एच, ठीक है, जो कि 3 जनरेशन्स के हैं। 3 जनरेशन्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया। 8 में से 4 लोग क्या हैं, फीमेल। तो कॉमन सेंस की बात है, बाकी के 4 क्या हुए, मेल, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि कितने फीमेल्स हैं और कितने मेल हैं। डी एंड ए आर डॉटर एंड सन ऑफ के, यानी कि डी क्या हुआ मेल, डी क्या हुआ डॉटर, और ए क्या हुआ सन, यानी कि डी हमारे पास जेंडर पता लग गया, डी फीमेल हो गई और ए मेल हो गया। इसी तरह हम बाकी लोगों का भी जेंडर पता लगाएंगे, और कोशिश कीजिए कि जैसे आप रीड कर रहे हैं साथ के साथ सॉल्व कीजिए ताकि आपका टाइम बचे। अब यहाँ दिया है नेक्स्ट, ई इज़ द सिस्टर ऑफ एच, यानी कि ई क्या हुई फीमेल, तो हम उसे डी के साथ यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और एच हुज फादर इज सी, इसका मतलब सी क्या हुआ मेल, हमें सी का भी जेंडर पता लग गया है यहाँ पे। और यहाँ लिखा हुआ है कि एम एंड जी आर ऑफ थर्ड जनरेशन, यानी कि सबसे नीचे आप एम लिखिए, लास्ट जनरेशन में है। टोटल 3 जनरेशन दे रखी हैं और एम और जी हैं जो कि थर्ड जनरेशन में है, तो सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। एम इज सन इन लॉ ऑफ ई, यानी कि एम क्या हुआ मेल हुआ। सन इन लॉ का मतलब आपको पता होगा दामाद, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ जी, आगे क्या दे रखा है हमें कि के जो है वो ब्रदर इन लॉ है एच का, ठीक है। तो के क्या हुआ मेल हुआ, तो ए एम सी के मेल हुए, बाकी के जो बचे वो क्या हुए फीमेल, ठीक है। एम सन इन लॉ है, यानी कि एम मैरिड है, एम शादीशुदा है, और किसके साथ, यानी कि ई की डॉटर के साथ। तो ई हमारे पास यहाँ पे फीमेल है, और लिखा हुआ है कि ई इज़ द सिस्टर ऑफ एच, तो हम एक साइड का एरो लगाएंगे, मैरिड के लिए बोथ साइड का लगाते हैं, ठीक है। और ई का यहाँ पे सिंबल लगा दिया फीमेल का, और सी फादर है एच का, तो ऑटोमेटिकली ई का भी फादर हुआ, क्योंकि ई क्या है सिस्टर है एच की। गाइस अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो मेरी, तो आप इसे 0.5 स्पीड में भी आप सुन सकते हैं वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में, क्योंकि आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि ये बिगनर के लिए वीडियो है, तो पहली बार जो लोग पढ़ रहे हैं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप हाफ स्पीड में भी देख सकते हैं इस वीडियो को, वो आपके ऊपर है।
तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सी की वाइफ के बारे में हमें यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है, तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। सी फादर हमें बता दिया गया है, ई और एच का, तो हमने 3 जनरेशंस बना ली। फर्स्ट जनरेशन में सी है, सेकंड में ई एच है, और थर्ड जनरेशन में एम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब बाकी के लोगों को हम डालेंगे, 4 पर्सनस को हम यहाँ पे उनके रिलेशनशिप्स डाल चुके हैं, ठीक है। तो हमें बताया था स्टार्टिंग में कि डी एंड ए आर डॉटर एंड सन ऑफ के, यानी कि ई मैरिड हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है के इज़ द ब्रदर इन लॉ। के इज़ द ब्रदर इन लॉ यानी कि वो उसका साला या आप कह सकते हैं जीजू हुए, ठीक है, हिंदी में अगर आप कहें तो, हाँ जी। तो के हमारे पास यहाँ पे मेल है, और मैरिड किसके साथ है, ई के साथ। और के का हमें ऑलरेडी बता रखा है कि के 2 बच्चे हैं, डी और ए। डी जो है वो है फीमेल और ए है मेल। बाकी के जो बच्चे फीमेल्स कौन से बच्चे, एच और जी, वो हमने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिलेशन शो करेंगे। एम तो सन इन लॉ है, ठीक है, तो वो मैरिड होगा फीमेल के साथ। फीमेल या तो अब 2 ही जने हैं, 2 बच्चे हैं, डी या ए, तो फीमेल में कौन आएगा, डी, यानी कि एम मैरिड है डी के साथ, ठीक है। और डी की जो ब्रदर है वो कौन हुआ, ए, यहाँ पे गिवन भी है, ठीक है। तो ए भी मैरिड है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ आर मैरिड। दोनों आपस में शादीशुदा नहीं हो सकते बिकॉज दोनों भाई बहन हैं, तो इसका मतलब इनकी शादी दूसरे पर्सन्स के साथ हुई है। तो एम की हुई है डी के साथ, और ए के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन बचा है जिसका नाम है जी, ठीक है। तो सी की वाइफ यहाँ पे दे नहीं रखी, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया 8 लोगों का पूरा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि सी के ई एच एम डी ए जी 8 लोग हो गए टोटल 3 जनरेशन्स में, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को, जो मैंने ये पज़ल सॉल्व किया है, आप रीड करते टाइम साथ के साथ इनको लिखते जाएं पॉइंट्स को, ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े, बार बार लिखना ना पड़े, आपका टाइम बचेगा। और कोशिश कीजिए 1 मिनट में सॉल्व करने की, क्योंकि ये ईजी एग्जाम्पल मैं लेके आई हूँ आपके सामने, ईजी क्वेश्चन है, और बाकी की वीडियो में हम टफ़ क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि हमने पज़ल तो सॉल्व कर लिया, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जनरली इसके यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसे हम सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास ए बी सी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ केओ इज़ अ चाइल्ड ऑफ डी, देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू दैट चाइल्ड, हाउ इज़ एच रिलेटेड टू डी, हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं, ताकि आपको बार बार पीछे बैक स्लाइड में देखना ना पड़े और आपके लिए आसान हो जाए ये क्वेश्चंस सॉल्व करना। तो हमारे पास 8 लोग थे, ठीक है, और सी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में था, ठीक है। और सी के 2 बच्चे बताए गए थे, ई और एच, और के किसके साथ मैरिड था, ई के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिम्बल्स लगा देंगे मेल एंड फीमेल्स के, ठीक है। ई फीमेल हो गया, एच भी फीमेल, और ई के हमारे पास सन इन लॉ था एम, यानी कि एम का सिंबल हो गया मेल का, यानी कि प्लस, और एम जो था वो मैरिड था डी से। मैरिड के लिए हम बोथ साइड एरोज यूज़ करते हैं, और ब्रदर या सिस्टर के लिए हम एक साइड एरो यूज़ करते हैं। तो डी क्या हुआ, फीमेल, और डी का जो हमें ब्रदर बताया है वो कौन था, ए का सिंबल हम यहाँ लगा देंगे मेल का प्लस, और ए मैरिड किसके साथ था, जी के साथ। हमें बताया गया था कि दोनों मैरिड है, और ए और डी, तो डी मैरिड है एम के साथ और जी मैरिड है ए के साथ। जी का सिंबल हो गया माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे 8 के 8 लोग आ गए हमारे पास, सी के ई एच जी ए डी एंड एम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, एम सन इन लॉ है, दामाद है, ना कि बेटा है, ठीक है। ई का, ई के बच्चे सिर्फ ए और डी हैं, तो इसको एरो को थोड़ा ठीक करेंगे, यहाँ पे इरेज कर देते हैं पहले इसको, ठीक है। और ई की जो डॉटर है वो है डी, ठीक है, एम सन इन लॉ है, तो यहाँ से हमने ठीक कर दिया। अब डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, इफ़ केओ इज़ अ चाइल्ड ऑफ डी, डी मैरिड है एम के साथ, यानी कि अब उनका एक बच्चा है, हमें जेंडर नहीं पता कि क्या वो मेल है या फीमेल है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे केओ लिख देते हैं, डी और एम का बच्चा जो है यहाँ पे चाइल्ड केओ, ठीक है। छोटा सा एरो लगा रही हूँ मैं ये दिखाने के लिए, अगर आप क्लियरली बनाएंगे तो बड़ा एरो लगाएंगे स्ट्रेट, ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो डी इज़ द क्या हुई, मदर ऑफ केओ, ओके। अब हमें आगे पूछा गया है
कि इफ़ क्यू इज़ अ चाइल्ड ऑफ डी, क्यू हमने यहाँ पे दिखा दिया, देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू दैट चाइल्ड। अब ए का क्या रिलेशन है उस चाइल्ड के साथ, यानी कि ए का क्या रिलेशन है क्यू के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं ए मेल है और वो ब्रदर है डी का, तो इसका मतलब वो अंकल हुआ। लेकिन एक चीज़ गाइस याद रखिए, अगर ऑप्शन में सिर्फ अंकल दे रखा है, आंट दे रखा है, फिर तो ठीक है, आप अंकल सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल दे रखा है तो आपको स्पेसिफिकली आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए ब्रदर है डी का और डी क्या है, फीमेल। ए एम का ब्रदर नहीं है, डी का है, और डी फीमेल है, इसका मतलब ए क्या हुआ, मैटरनल अंकल हुआ, ठीक है, ऑफ क्यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज़ एच रिलेटेड टू डी। एच का क्या रिलेशन है डी के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं ई मदर है डी की और एच सिस्टर है ई की, यानी कि एच डी की क्या हुई, आंट हुई, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपसे पूछा जाए कि मैटरनल आंट है या पैटर्नल आंट है तो आप वो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये मान के चले कि आपको यहाँ पे सिर्फ आंट का ऑप्शन दिया तो हम सिर्फ आंट लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। डी की ननंद कौन है, तो एक ही है जो है जी, यहाँ पे दी गई है, जो कि मैरिड है ए के साथ। ए ब्रदर हुआ डी का, तो उनकी जो वाइफ हुई जी, वो क्या हुई, सिस्टर इन लॉ डी की, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस आज के लिए, और मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के साथ, ठीक है। देखते रहिए मेरा चैनल बैंकिंग लाइफ पायल। धन्यवाद।